جو پروں پر آسمان میں اڑ رہا ہے، نیچے گہرا نیلا سمندر، اوپر کھلا آسمان، اور وہ اس آزادی کے احساس میں بالکل کھویا ہوا ہے۔ جی، ایک ایسی آزادی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی، لیکن پھر وہ ایک غلطی کرتا ہے، وہ سورج کے بہت قریب چلا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ اکارس کے زوال کی کہانی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف تکبر کی کہانی نہیں، یہ ٹیکنالوجی کی بھی کہانی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، ڈیڈلس نے جو پنکھ بنائے وہ اس دور کی سب سے بڑی ایجاد تھی، اور ہمارے پاس جو مواد ہے، یعنی اووڈ کی کتاب میٹامورفوسس، وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہر ایجاد اپنے ساتھ ایک انتباہ لے کر آتی ہے۔ میٹامورفوسس یعنی تبدیلی۔ جی، یہ کتاب قدیم یونانی اور رومی دیو مالا کی ایک طرح کی انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس کی ہر کہانی کا مرکزی خیال ہی تبدیلی ہے۔ تو آج ہم انہی پرانی کہانیوں کی گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ ہمیں آج بھی اتنا کیوں متاثر کرتی ہیں۔ ہم انسانی فطرت، دیوتاؤں کے غضب اور تقدیر کے عجیب فیصلوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی کہانی، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، اکارس کی ہے۔ اس کا باپ ڈیڈلس ایک بہت ہی باکمال کاریگر ہے جسے کریٹ کے جزیرے پر قید کر دیا گیا ہے۔ جی، اور فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہنر کا استعمال کرتا ہے۔ وہ موم اور پروں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے پنکھ تیار کرتا ہے، اور وہ اکارس کو سمجھاتا ہے کہ درمیانی راستے پر رہنا۔ بالکل، وہ کہتا ہے بہت نیچے گئے تو سمندر کی نمی پنکھوں کو بھاری کر دے گی، اور بہت اونچے گئے تو سورج کی گرمی موم پگھلا دے گی۔ جی، لیکن اکارس ایک نوجوان ہے۔ اسے جب اڑنے کی طاقت ملتی ہے تو وہ کھلے آسمان کی خواہش میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ آزادی کا نیا احساس۔ ہاں، وہ اسی احساس میں اونچا اور اونچا اڑتا چلا جاتا ہے، اور یہاں اووڈ ایک بہت ہی دلچسپ منظر دکھاتا ہے۔ کیا؟ وہ بتاتا ہے کہ نیچے زمین پر کوئی مچھلی پکڑ رہا ہے، کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں کو ہانک رہا ہے، اور وہ آسمان میں ان دونوں کو اڑتا دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ انہیں دیوتا سمجھ لیتے ہوں گے؟ بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرور کوئی دیوتا ہیں جو ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسان جب اپنی حد سے نکلتا ہے تو دوسروں کو دیوتا لگنے لگتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ جی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ سوچیں، جب انسان نے پہلی بار گاڑی چلائی ہوگی یا انٹرنیٹ استعمال کیا ہوگا، وہ آزادی کا احساس اکارس جیسا ہی تو ہوتا ہے۔ صحیح۔ اووڈ ہمیں 2000 سال پہلے ہی بتا رہا تھا کہ انسانی فطرت نئی طاقت کو سنبھالنے میں اکثر کمزور ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سورج کی تپش سے موم پگھل جاتی ہے، پنکھ بکھر جاتے ہیں، اور اکارس اپنے باپ کا نام پکارتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے۔ اور اس کا باپ ڈیڈلس، جو اب صرف ایک کاریگر تھا، ایک باپ نہیں، وہ اپنے ہی فن پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ سمندر آج بھی اسی کے نام سے اکارین سمندر کہلاتا ہے۔ اسی تکبر کی کوئی اور مثال بھی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک؟ جی، شاید اس سے بھی زیادہ۔ ایریسٹھون کی کہانی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو دیوتاؤں کا مذاق اڑاتا تھا، ان کے اصولوں کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ اچھا۔ اس نے دیوی سیریز، یعنی زراعت کی دیوی کے مقدس باغ میں ایک بہت پرانے بلوط کے درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ ایک مقدس درخت کو؟ یہ تو سیدھی دیوتاؤں کو چیلنج کرنے والی بات ہوئی۔ جی، اور اس کے خادموں نے اسے روکا بھی، لیکن اس نے خود کلہاڑے اٹھا لی۔ اسے بتایا گیا کہ اس درخت میں ایک دیوی کی روح بستی ہے۔ جب اس نے پہلی ضرب لگائی تو کیا ہوا؟ درخت کی چھال سے خون بہنے لگا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اور اس کی سزا؟ مجھے ڈر ہے کہ سزا بہت بھیانک ہوگی۔ سزا علامتی تھی، اور اتنی ہی شدید۔ سیریز نے اسے کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک کی سزا دی۔ کبھی نہ ختم ہونے والی بھوک؟ جی، بھوک کی دیوی نے رات کو سوتے میں اس کے جسم میں بھوک پھونک دی۔ اس کا حال یہ ہوا کہ وہ اپنا سارا مال و اسباب بیچ کر کھانا خریدتا رہا، لیکن اس کی بھوک کبھی نہ مٹی۔ ایک منٹ، جب اس کا سارا مال ختم ہو گیا تو پھر؟ تب اس نے اپنی بیٹی کو بیچنا شروع کر دیا۔ کیا؟ اپنی بیٹی کو؟ ہاں، اس کی بیٹی میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنی شکل بدل سکتی تھی۔ وہ ہر بار ایک نئے روپ میں، کبھی گھوڑی، کبھی پرندہ، کبھی گائے بن کر خریدار سے بھاگ آتی، اور اس کا باپ اسے پھر کسی نئے خریدار کو بیچ دیتا۔ یہ تو بہت ہی خوفناک ہے، اپنی ہی بیٹی کو بار بار بیچنا۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ آخرکار جب بیچنے کے لیے کچھ نہ بچا تو وہ بھوک کی شدت میں اپنے ہی جسم کو نوچ نوچ کر کھانے لگا، اور اسی طرح مر گیا۔
यहाँ दरख्त काटना सिर्फ एक लकड़ी काटना नहीं था, ये फितरत के साथ एक मुकद्दस रिश्ते को तोड़ना था। ओविड के लिए फितरत खुद एक जिंदा वजूद थी। मतलब ओविड की दुनिया में तो लगता है कि मोहब्बत भी इतनी ही खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, ओविड हमें इंसानी जज्बात की इंतहाओं पर ले जाता है, और मोहब्बत जब जुनून बन जाए तो वो तकब्बुर से भी ज्यादा तबाकुन हो सकती है। जैसे सिकिला की कहानी में। जी, बेहतरीन मिसाल। वो मेगारा शहर की शहजादी है और उसके शहर का मुहासरा क्रीट के मशहूर बादशाह माइनोस ने किया हुआ है, और वो अपने शहर पर हमला करने वाले दुश्मन बादशाह की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। ये तो शुरू से ही एक तबाही लग रही है। हाँ, और ये कोई आम मोहब्बत नहीं, ये एक जुनून है। उसके बाप बादशाह नाइसिस की जिंदगी और सल्तनत का राज उसके सर के एक जामनी बाल में छुपा है। जब तक वो बाल सलामत है, उसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो सिकिला को लगता है कि अगर वो माइनोस को फतह दिला दे तो वो उससे मोहब्बत करने लगेगा। जी, तो उसने अपने बाप को धोखा दिया। इससे भी बढ़कर कुछ किया। वो रात को सोते हुए अपने बाप के कमरे में गई और वो जामिनी बाल काट लिया। फिर वो उसे लेकर सीधा दुश्मन के कैंप में माइनोस के पास पहुंची और कहा, मोहब्बत ने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। मैं तुम्हें अपना मुल्क और अपना घर सौंपती हूँ, बदले में मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और माइनोस का रद्द अमल क्या था? क्या वो इस तोहफे से खुश हुआ? खुश होने के बजाय वो शदीद नफरत और घिन महसूस करता है। वो चीखता है, तुम हमारे जमाने के लिए एक रुसवाई हो। मैं अपनी दुनिया क्रीट को तुम जैसे अफरीद से आलूदा नहीं होने दूंगा। यानी इसके लिए ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक घिनौना जुर्म था। बिल्कुल। और जब माइनोस का बहरी जहाज रवाना होता है तो वो मायूसी में उसके जहाज से लटक जाती है। आखिरकार देवता उसे एक परिंदे में तब्दील कर देते हैं। मोहब्बत के नाम पर की गई गद्दारी को कोई कबूल नहीं करता। जी, और इन कहानियों में जज्बात इतने शदीद हैं कि वो इंसान को पूरी तरह बदल देते हैं। ये बात हमें मेली एगर और उसकी माँ अल्थिया की कहानी में और भी वाज़े नजर आती है। ये तो पूरे खानदान की तबाही की दास्तान है। जी, ये शायद सबसे अलमनाक कहानियों में से एक है। मेली एगर एक हीरो है जो एक खौफनाक जंगली सुअर का शिकार करता है। इस शिकार में अटलांटा नामी एक शिकारी खातून भी शामिल है, और मेली एगर उसकी बहादुरी से बहुत मुतासिर होता है। और जब सुअर मारा जाता है तो वो इनाम में उसकी खाल अटलांटा को दे देता है। हाँ, लेकिन उसके मामू यानी उसकी माँ अल्थिया के भाई इस बात पर भड़क उठते हैं कि ये एजाज एक औरत को क्यों दिया गया। अच्छा। वो अटलांटा से खाल छीन लेते हैं। मेली एगर इस तौहीन पर इतना गुस्से में आता है कि वो अपने दोनों मामू को कत्ल कर देता है। एक लम्हे का गुस्सा। और उसके नताइज बहुत दूर तक गए। जब उसकी माँ अल्थिया को अपने भाइयों की लाशों का पता चलता है तो उसका दुख गुस्से में बदल जाता है। एगर पैदा हुआ था तो तकदीर की देवियों ने कहा था कि इस बच्चे की जिंदगी लकड़ी के एक खास टुकड़े से जुड़ी है। जब तक वो लकड़ी महफूज है, मेली एगर जिंदा रहेगा। और अल्थिया ने वो लकड़ी आग से निकाल कर छुपा दी थी। जी, एक माँ की मोहब्बत में। और अब अपने भाइयों की मौत के बाद वो इसी लकड़ी को इस्तेमाल करने का सोचती है। ये एक नाकाबिले तसव्वुर इंतखाब है। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ भाई। वो तो फंस कर रह गई। बिल्कुल, वो एक माँ की मोहब्बत और एक बहन के फर्ज के दरमियान फंस जाती है। ओविड लिखता है कि वो 4 बार लकड़ी को आग पर रखने की कोशिश करती है और 4 बार हाथ पीछे खींच लेती है। लेकिन आखिरकार भाइयों के इंतकाम का जज्बा गालिब आ जाता है। वो कहती है मौत को मौत से चुकाना होगा, और लकड़ी का वो टुकड़ा आग में फेंक देती है। और जैसे ही लकड़ी जलकर राख होती है, दूर कहीं मेली एगर भी तड़प कर मर जाता है। ये कहानियां तो बहुत तारीक और मायूस कुन है। क्या ओविड की दुनिया में कोई उम्मीद नहीं? क्या देवता सिर्फ सजा ही देते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इन तमाम अलमनाक कहानियों के बीच ओविड हमें ये भी दिखाता है कि देवता नेकी, आजिजी और मेहमान नवाजी का इनाम भी देते हैं। अच्छा। और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल बाउसिस और फ्लेमोन की कहानी है। अच्छा, ये कहानी क्या है? देवताओं के बादशाह जुपिटर अपने बेटे मर्क्यूरी के साथ इंसानी रूप में जमीन पर आते हैं ताकि इंसानों की मेहमान नवाजी को परख सकें। वो एक गांव में हजारों घरों पर दस्तक देते हैं, लेकिन कोई उन्हें पनाह नहीं देता। हर जगह से उन्हें धत्कार दिया जाता है। यानी पूरा गांव ही बेरहम था। बिल्कुल। आखिर में वो एक छोटी सी झोंपड़ी पर पहुंचते हैं जो सरकंडों और घास फूस से बनी है। ये एक गरीब बूढ़े जोड़े बाउसिस और फ्लेमोन का घर है। और वो गरीब होने के बावजूद उन अजनबियों का इस्तकबाल करते हैं। जी, खुले दिल से। वो अपना बेहतरीन खाना पेश करते हैं
और खाने के दौरान एक मौजज़ा होता है। वो देखते हैं कि शराब का बर्तन वो खुद ब खुद भर जाता है। और तब उन्हें एहसास होता है कि ये आम इंसान नहीं है। जी, वो घबराकर माफी मांगने लगते हैं, लेकिन देवता अपनी असली शक्ल में जाहिर होते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं। वो इस पूरे गांव को एक झील में गर्क कर देते हैं, लेकिन उस जोड़े और उनकी झोंपड़ी को बचा लेते हैं। और उनकी झोंपड़ी एक मंदिर में बदल जाती है। जी, संगमरमर के एक शानदार मंदिर में जिसकी छत सोने की होती है। और जब देवता उनसे इनाम मांगने को कहते हैं तो वो क्या मांगते हैं? दौलत? ताकत? नहीं, वो ये सब कुछ नहीं मांगते। वो सिर्फ ये दुआ करते हैं कि वो इस मंदिर के पुजारी के तौर पर खिदमत कर सके। और चूंकि इन्होंने अपनी जिंदगी खुशी से एक साथ गुजारी है, वो चाहते हैं कि एक ही लम्हे में मरें। वाह! और उनकी ये दुआ कबूल होती है। जी, कई साल बाद जब वो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, वो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े एक दूसरे को दरख्तों में तब्दील होते हुए देखते हैं। फ्लेमन बलूत का दरख्त बन जाता है और बाउसिस लिंडन का। और उनके तने एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जी, ये कहानी दिखाती है कि देवताओं की नजर में आजिज़ी और मेहरबानी की क्या कदर है। तो इन सब कहानियों का क्या मतलब निकलता है? एक तरफ तबाही, दूसरी तरफ इनाम। मतलब ये है कि ओविड की ये कहानियां सिर्फ देवताओं और इंसानों के किस्से नहीं हैं। ये दरअसल इंसानी जज्बात की इंतहाओं की अक्कासी करती हैं। वो तकब्बुर जो तबाही लाता है, वो मोहब्बत जो जुनून बन जाती है, और वो आजिज़ी जिसे आखिर में इनाम मिलता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है वो ये है कि ये कहानियाँ खुद किस तरह सुनाई जा रही हैं। हमारे ज़राए में ये कहानियाँ एक किरदार किसी और किरदार को सुना रहा है, मतलब एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो ये हमें कहानी सुनाने के अमल पर गौर करने की दावत देता है। आखिर हम कहानियाँ सुनाते ही क्यों हैं? शायद इसलिए कि ये सिर्फ तफरीह नहीं थी। ये कदीम दुनिया के लोगों का कायनात की आफरा-तफरी, नाइंसाफी और मौजज़ात को समझने का एक तरीका था। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर अमल का एक नतीजा होता है। जी, चाहे वो कितना ही भयानक हो या खूबसूरत। शायद कहानी ही वो वाहिद जरिया है जिससे हम अपनी दुनिया को इसकी तमाम तर होलनाकियों और खूबसूरतियों के साथ कोई माने दे सकते हैं। तो शायद आज के दौर में जहां हम मालूमात के शोर में घिरे हुए हैं, हमें उन कदीम कहानियों की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी बुनियादी इंसानी ख्वाहिशात, हमारे खौफ और हमारे जज्बात वो हजारों सालों में जरा भी नहीं बदले। बिल्कुल, इन कहानियों को समझना शायद खुद को समझने का मुतरादिफ है।